So the topic of today's masterclass is how to be a better trainer. अगर आप ये करियर पाथ ऑप्ट करना चाहते हैं और इसको इस फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं और कौन से टिप्स हैं, कौन सी गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए कि आपकी डिलीवरी बेहतर हो सके, जो नॉलेज आपके पास है वो आप बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकें. So to share that knowledge with us and share his experience in training, हमारे master trainer है Zulfikar Ali Qureshi साहब. So without any further delay, I would like to invite Mr. Zulfikar Ali Qureshi to begin the session. Okay, assalamu alaikum and thank you very much Iftikhar for a brief introduction. Welcome everyone on today's master class. The topic or the title is basically the end of the boring trainings. I think Iftikhar ने थोड़ा ज़्यादा उसको कर लिया. Before proceeding to the session, I think who is in this room? Around 20 participants are there, and I think that there is a mix of participants. Maybe there could be trainers, there could be leaders, managers, professionals who conduct on-job training, educators, facilitators, etc., and the professional interested in learning and communication. So there is a mixed audience there. So is this session only for trainers or is there something for other professionals as well? So why this session matters to everyone, trainers, leaders and professionals. Can anybody put this into the chat? Okay, if you are a leader, so why this session matters to you? I think that today the boring session is the major topic. I hope that most of you may have attended boring session once, twice or many times in your life. And sometimes we say that when we are meeting certain people, they are boring. Certain companies are boring. Even meetings are boring. Certain atmosphere are boring. So boring phenomena or the terminology is not only related to the training, it's I think into our day-to-day life. So whatever you are a trainer, a leader or a professional, your effectiveness. So which ability? The ability to create meaningful engagement. So engagement will be the major prime topic for today's master class today. In half an hour and 45 minutes, what will be able to achieve this or not. Remember that we are living in this modern era. Why this is different? Because information is everywhere. You will agree that nowadays we have Google, AI, YouTube, online learning, blah, 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 blah. There are so many things which are in this area now available. So information or the knowledge, the real crisis is not information, it is engagement. So knowledge nowadays is not an issue. Organizations are struggling with disengaged employees, passive meetings, training fatigue, and do you agree to this? Anybody in the chat box? Or they can open their up mic. Okay, Iram says yes, most of this says. So disagreement and the big participation, that is the big reality. So what is a boring training? Can anybody define what is a boring training in chat box? Is where the audience have no interest. Very well said. The way the participation lose interest in learning, excellent. A training without boring with training with a boring topic, that is also another perspective. Very well said. So thank you very much for your contribution. All of you are right that what is a boring training? It is any learning experience where participants mentally disconnect despite being physically present. So mentally they are disconnected with the training or the meeting or even even your social gathering. Mentally they are disconnected, but physically they are present. So boring training, it is not lack of content, it is lack of cognitive and emotional engagement. So these two terms now we are introducing, that the cognitive and emotional engagement.
What exactly make training boring according to you? What is your opinion? Everybody is clear with the cognitive load? Want to sleep. Zabardast baat bhai. Yes, clear. Iram is clear. She is always. So cognitive load, maybe we will talk about more, but the emotional connection or the engagement, it is important for the important for the engagement, and the training should not be boring for learning even. So people do not get bored because learning is complex. They get bored when they become passive spectators. Means मैं बैठा तो हुआ हूँ लेकिन मैं contribute नहीं कर रहा, मेरी engagement, मेरी involvement नहीं है. I think most of you are clear with this. So the boring training triad. Number one, psychological disconnection. ट्रेनिंग बोरिंग में एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होगा, दूसरा होगा कॉग्निटिव फैक्टर और कॉग्निटिव ओवरलोड. थर्ड फैक्टर कुड बी the practical irrelevance or physical disengagement. We will talk about these three topics or these 3 points a little bit more in detail in coming slide. So the boring triad, it depends on the psychological disconnection, cognitive overload, and practical irrelevance, that it is not relevant to me. Now let's see what about the psychological lens. The relevance gap. Adults engage when learning solves real problems. So that comes our first chapter of I think CTP, that is the adult learning principle, where we talk about the pedagogy and andragogy. बच्चों को पढ़ाने का स्टाइल, नीड्स अलग हैं और बड़ों के लिए बिल्कुल डिफरेंट पैरामीटर्स हैं. जैसे लिखा हुआ है कि लर्निंग सॉल्व्स रियल प्रॉब्लम. एडल्ट्स आर ओनली इंटरेस्टेड कि जब वो देखें कि उनके किसी रियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको मिल रहा है या नहीं है. रेलेवेंस इज विजिबल, ये मेरे लिए कितना रेलेवेंट है. एक्सपीरियंस इज रिस्पेक्टेड एंड पार्टिसिपेशन एग्जिस्ट, कि उनको एंगेज किया जा रहा है, उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है, तभी कहीं जाके एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा. सो दैट इज व्हाट द साइकोलॉजिकल लेंस मेजर 4 पॉइंट्स that and here we have to follow the andragogy or the Knowles principle. I'm not going in detail. If somebody is interested, so that he can join our CTP diploma course. Then the cognitive lens. Cognitive lens में क्या है? The brain disconnects when slides are overloaded. जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने क्रिएट किया था उसके अंदर हमने एक स्लाइड ए और स्लाइड बी की भी ऑप्शंस दी थी, और उसमें यही था कि जो ओवरलोडेड, जिसके अंदर बहुत ज्यादा कंटेंट होता है, वो एक कॉग्निटिव लोड पैदा कर रहा है. कॉग्निटिव लोड जो मेंटल के दिमाग को प्रोसेस करने में आपका लोड या एनर्जी खर्च होती है. अगर ज्यादा खर्च हो रही है, लेस लर्निंग हो रही है. इंफॉर्मेशन बिकम रिपीटेटिव, पार्टिसिपेशन डिसअपीयर्स एंड मेंटल फटीग इंक्रीजेस. So that is the cognitive load. The process trap, also we call as the process trap. Then as per the functional lens, information. Many trainings focus on attendance, compliance, completion, and ticking the box. So information is overloaded, but normally ज्यादातर ट्रेनिंग्स में हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि वी डोंट डू दी नॉर्मल ट्रेनिंग नीड एनालिसिस फर्स्ट. सो आई होप के एवरीबॉडी इज अवेयर विद दी ट्रेनिंग नीड एनालिसिस. कैन एनीबॉडी गाइड मी व्हाट इज ट्रेनिंग नीड एनालिसिस ऑन द चैट बॉक्स? To identify the performance gap. What is the performance gap? जी, नीड एनालिसिस बेसिकली एक असेसमेंट किया जाए किसी भी ट्रेनिंग सेशन को कंडक्ट करने से पहले. ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, टीएनए जिसे हम कहते हैं. अदरवाइज आप बगैर टीएनए के जाते हैं, आप कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं और उसके आप डिलीवर करते हैं, तो अक्सर इररिलेवेंस होती है. आप ये तो देखें कि आपके अटेंडेंस का है, आपके पार्टिसिपेंट्स या लर्नर जो हैं वो हैं किस लेवल पे. फिर ये भी याद रखिएगा कि जो है ट्रेनिंग नीड एनालिसिस पे जब हम करते हैं तो हम सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव देखते हैं, टास्क को ऑब्जर्व करते हैं कि फॉर एग्जांपल कस्टमर सर्विसेज की टास्क वाली टीम है, उनको कहीं कंप्लेंट्स ज्यादा मिल रही हैं, तो कंप्लेंट्स ज्यादा मिलने की वजूहात क्या हैं. अच्छा, वजूहात के अंदर भी मुख्तलिफ फैक्टर्स आते हैं. मुख्तलिफ फैक्टर्स में एक है
कि हम मेगर एंड पाइप मॉडल पे बात करते हैं कि ये कांट डू पे है या वोंट डू पे है. कांट डू, वोंट डू, आई थिंक यू आर क्लियर और नॉट. कांट डू मैं कर नहीं सकता, वोंट डू मैं कर तो सकता हूं, मैं करना नहीं चाहता. That is Meagher and pipe model. Can't do, won't do, and there is another parameter that is called as the system don't allow. कि मैं करना भी चाहता हूं, मैं कर सकता हूं, लेकिन मुझे सिस्टम या एनवायरमेंट अलाउ नहीं कर रही. सो सॉरी, हम टीएनए पे थोड़ा सा बेसिक भी जा रहे हैं. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी. मैं समझ रहा हूं कि ये देख रहा हूं अक्सर ट्रेनिंग्स के अंदर टीएनए नहीं हो रहा, और एक ब्लाइंड और सब्जेक्ट से रिलेटेड थ्योरी बेस्ड जो है मटेरियल लाके ओवरलोड कर दिया जाता है. मटेरियल अच्छा होता है, कंटेंट अच्छा होता है. टू आइडेंटिफाई गैप इन ट्रेनिंग इज नीडेड. थैंक यू इल्सा. यस एग्जैक्टली, आइडेंटिफाई द गैप. गैप के बाद रीजन, गैप क्यों आ रहा है. कांट डू, वोंट डू और सिस्टम डोंट अलाउ. अच्छा, इस करने के बाद की जरूरी नहीं है कि ट्रेनिंग इज द सॉल्यूशन. टीएनए जब हम करते हैं कांट डू में ही ट्रेनिंग आती है. वोंट डू के अंदर एटीट्यूड का इशू आता है, काउंसलिंग का, या उनके साथ बैठा जाता है कि भाई आपको करना तो आता है, मैं आपको सिखाऊं क्या. सो दैट इज द, तो ट्रेनिंग का रोल कहां आएगा, कांट डू पे आएगा. अच्छा, कांट डू के ऊपर फिर इसके 3 मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं. Can anybody guide me? What 3 sort of training development can be types can be present there? Level, person. I think Nazim, you can and respond. task. There are So certain, organize- I think हमारे CTP के कुछ लोग भी इसमें बैठे हुए हैं, so I'm really grateful for them. Okay, Organize. can't do के basically 3 types हैं. Number 1 है कि आया, उसके पास knowledge की कमी है, उसके पास स्किल नहीं है, या उसका एटीट्यूड डेवलपमेंट है, या नॉलेज और स्किल दोनों हैं, एटीट्यूड को इंप्रूव करना है, हमने बिहेवियर इंप्रूव लेकर आना है, या बिहेवियर प्लस स्किल को इंप्रूव करना है. सो ये 3 डिफरेंट किस्म की टाइप्स इसकी हमें डिफाइन करनी पड़ती हैं कि भाई ट्रेनिंग नीड एनालिसिस के बाद कि मैंने आया इनको स्किल देनी है, नॉलेज देनी है, या दोनों देनी है, या इसके बिहेवियर इंप्रूव करना है. फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंस की कमी है उसके अंदर. Okay, so that is the initial thing in any delivery. Okay ji, what does I learned this in a training session that the exercise for a training session without knowing your audience is just like writing a love letter with the subject to whom it may. Excellent saying that without TNA it is like this writing a love letter. But we don't know who is the receiver there. So that is the way. Another point is that you raised very important point. Thank you very much. Anyhow, so the TNA, either knowledge needs to be improved, either skills need to be improved, or attitude or the behavior needs to be improved. So in TNA, it comes like this. Why I'm putting a bit time on this slide, because in functional lens, if you have not identified that either you want to give knowledge, skill, or improve is behavior. So we have to identify these things. For example, the person has the knowledge and you are providing more knowledge, so it will get more boring. Person has the skills and you are providing or trying to improve his more skills, so it may get boring. So similarly, he doesn't have the attitude, so your training must be directed as per the objective made after the TNA. So that is the functionalness. Any questions from the participants? Engagement matters. If we are not connected, for example, I'm putting a question and someone is responding, most of the people are not responding. So I'm trying to engage, but due to maybe certain, I think, bystander effect, what we have discussed in the WhatsApp, so there is a majority of people who doesn't like to respond. So engagement is not entertainment, it is cognitive activation. So that is another important point, that it is not entertainment. What do I mean by this? That engagement is not entertainment. Can anybody guide me? One of my CTP sessions, it was, I think, first session, and at the end
I ask participants to give me my area of improvement. Are these trainings area of improvement? So you know, most of them said what? Sir, activities होनी चाहिए, activities ज़्यादा होनी चाहिए. I took it positively. Yes, activities होनी चाहिए. अच्छा, नेक्स्ट सेशन में मैंने पूछा आपके ख्याल से एक्टिविटीज होती क्या है? सो दे सेड कि जी हमने फलाने उसमें किया था, किसी में जहाज बनाए थे, किसी में हमने ये किया था, फन किया था. यस, दीज आर पार्ट ऑफ एक्टिविटीज. बट यू नो, activities also depend on the objective, and they could be at the end of this activity, any activity, either it improves your knowledge, attitude, or skill. So activities should be based on this. No need of doing the power poses exercise if you don't have relevance to that training session. So engagement is not entertainment, it is cognitive activation. Remember, cognitive activation. आप mentally कैसे उनको provoke करते हैं, activate करते हैं. So neuroscience suggests first, emotion strengthens memory, curiosity activates attention, participation improves retention, reflection deepens learning. So 4 points: emotions, curiosity, participation, and reflection. What is reflection? The same question, I would humbly answer, please limit your movement, especially during an online session. Thank you very much for your feedback. I will try, but I have this problem actually, but I will try to limit my movement. Thank you very much. Anyhow, I will try. So coming back to the neurosciences suggest, what it does, it suggests emotions, curiosity, participation, and reflection. So I was asking what reflection means to you. Anybody in the chat box? Reflection ये कि आपने जो भी आप बात अपनी करें, आपने कोई स्टोरी सुनाई है, आपने कोई टॉपिक पर है, उसके बाद आप रिफ्लेक्शन दे, अपना इनपुट दीजिए कि हाउ इट इज रेलेवेंट टू यू. सो रिफ्लेक्शन इज इंपॉर्टेंट. What disconnects people? First, during training, meetings, presentation, and on online session. I need your answer, your participation on it. कि आपने बहुत सारे events, meetings attend की हुई हैं. आपको कब disconnect होता है और क्यों disconnect होता है? कब disconnect हुए? Meeting के दौरान, training के दौरान? Anybody please? Said कि एक ही टोन में बात की जाए, एक ही अंदाज में बात की जाए. दूसरा, बहुत ज्यादा theoretical हो सकता है. Blah blah blah. There are so many reasons that people get disconnect. Too many slides, monotone speaking, long theory, no interaction, irrelevant content, and next slide please. What is very common with the most of the trainers, or any question that is also very common with the trainer. There is a psychology with the any question. Maybe I will elaborate it next. Trainers are not disengaged because topics are difficult. They disengage when learning lacks relevance, participation disappears, information becomes the passive consumption. So that are the 3 major disengagement factors when learning lacks relevance. कि अगर ये मास्टर क्लास की relevance नहीं है, आप लोग disengage हो जाएंगे, आप लोग अपना सेशन भी छोड़ देंगे. पार्टिसिपेशन विल डिसअपियर, लोग अपने मोबाइल्स पे खेलने शुरू हो जाएंगे, साइड पे कन्वर्सेशंस करना शुरू हो जाएंगे. इंफॉर्मेशन बिकम्स पैसिव कंफर्मेशन. पीपल रिमेंबर व्हाट? एक्सपीरियंसेस, इमोशंस, स्टोरीज, पार्टिसिपेशन, etc. for more than passive information. I think these 4 terminologies, इनके ऊपर अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है. सो मेरे नजदीक एक ट्रेनर को, फैसिलिटेटर को, इंस्ट्रक्टर को, he has to create an experience कि इस ट्रेनिंग में ओवरऑल उसका एक्सपीरियंस कैसा हुआ, कितना इमोशनली वो कनेक्ट हुए एक दूसरे के साथ, स्टोरी टेलिंग क्या हुई और पार्टिसिपेशन कैसी रही, क्या सबको प्रॉपर टाइम मिला, नहीं मिला,
बात करने का सेफ एनवायरनमेंट था या नहीं था. द बिग शिफ्ट फ्रॉम content centric training to maybe now we should talk about the engagement centric. That is the shift कि कंटेंट से ज्यादा, कंटेंट इंपॉर्टेंट है अपनी जगह पे है, लेकिन कंटेंट जनरेट करना आज के दौर में इतना इश्यू नहीं है ड्यू टू एआई एंड सो मनी इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल. बट एंगेजमेंट, दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द चैलेंज. यहीं पे आपका आर्ट है कि आप एंगेज कैसे करके लोगों को चलते हैं. इवन इफ यू आर अ टीम लीडर, आपके पास 4, 6, 10, 20 लोगों की टीम है, आप उनको एंगेज कैसे करके चलते हैं, कैसे बेटर रिजल्ट ड्राइव करते हैं. सो फ्रॉम दिस कंटेंट सेंट्रिक टू engagement centric, that approach we have to adopt as a productive trainer. So modern learning is no longer an information delivery, it is facilitation. Anybody has the answer or the concept of what is facilitation? Facilitation, what is facilitation? What are the facilitating skills? Facilitation, I think there are 6 different heads of a trainer. Maybe I think in detail that 6 different types of heads we may cover in some of our other master class. So what are those different heads? जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि TNA जब हमने किया तो उसमें हमें पता लगा कि जी नॉलेज में कमी है, स्किल में कमी है या एटीट्यूड में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है. उसी हिसाब से ट्रेनर्स के मुख्तलिफ हेड्स हैं, किस वक्त ट्रेनर ने कौन सा हेड पहनना है. फॉर एग्जांपल, अगर आपकी ट्रेनिंग की नोयत ऐसी है जिसमें आपने एसओपीज पढ़ानी है, एसओपीज बतानी है, इंस्ट्रक्शन आपने बतानी है, सो यू हैव टू एक्ट लाइक अ इंस्ट्रक्टर. दैट इज फर्स्ट ट्रेनिंग हेड कि जी डू दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग. दैट इज कॉल्ड एज द इंस्ट्रक्टर. देन वी हैव अनदर हेड कॉल्ड एज द लेक्चरर or teacher. So what our lecturer, our teacher does? Any idea? Our teacher, it is basically, he is basically in knowledge encyclopedia. He simplifies that big theories to you. So that is what a lecturer or a teacher does. Then we have another head, coach, trainer, facilitator, mentor, etc., etc. Today's topic is not this. Maybe we will cover this in our next session. Then reflection थोड़ी सी मैंने बात कर ली. Then the participation and experience creation, बहुत ही मैं समझता हूँ कि ब्रॉडर टर्म है एक्सपीरियंस क्रिएशन कि आपने ओवरऑल ट्रेनिंग में क्या एनवायरनमेंट दिया, कितना नॉर्मलाइज रखा उनको, कितना अच्छा रखा अपने पार्टिसिपेंट्स को माहौल के हिसाब से. AI can generate information, summarize concepts, it can create content because we are living in the age of AI. इसी का दौर है. AI ये सब कुछ तो कर सकता है, लेकिन human create trust, inspiration, emotional connection and meaningful engagement. So we have to master in these points: engagement, facilitation, meaningful engagement, inspiration, etc., etc. A trainer who only speaks is competing with the Google. अगर आपको सिर्फ नॉलेज की बम्बार्डमेंट करनी चाहिए तो वो तो आपको गूगल ही ज्यादा बेहतर बता सकता है, जीपीटी उससे भी ज्यादा बता सकता है. So that is what this program CTP was created 1 year before. The reason, because the CTP focus area is facilitation psychology, audience engagement, learning experience design, communication presence, modern trainer development, reflection driven training. It's the 3 months diploma program जिसमें 12 classes हैं, total 72 hours of learning है. CTP was designed, it was to help professionals to evolve from presenter, lecturer, information deliverer to facilitation, engagement creation, and impactful communication. Key takeaways of today's session: information does not guarantee learning, passive audience disconnect quickly, engagement improves retention,
Experience is remembered more than slides. The future belongs to engaging communication. So thank you very much. I hope that short time में मैं को काफी कुछ कवर कर सका. अगर आपके कोई क्वेश्चंस आंसर्स हैं, so I will be happy to answer that. Vikas sir, for such a thoughtful and insightful masterclass. इसका अगर कोई इस सेशन के हैंडआउट्स चाहता है तो काइंडली जो हम फीडबैक फॉर्म का लिंक शेयर किया है इसको फिल आउट कर दें ताकि हम आपके साथ इसके जो हैंडआउट्स हैं वो शेयर कर सकें. एंड बिफोर मूविंग ऑन टू द Q&A सेशन, मैं बस एक छोटी सी प्रेजेंटेशन देना चाहूँगा, एक ब्रीफ अबाउट द अपकमिंग कोर्सेज जो PDC जो है करंटली ऑफर कर रहा है. तो शॉर्ट ब्रीफ ऑफ पोर्टफोलियो, उसके बाद हम जो है अपने Q&A सेशन की तरफ बढ़ते हैं. एक हमारे पास ऑब्वियसली जो अभी हमारी जिस कोर्स की मास्टर क्लास हुई है इसके लिए हमारी ट्रेनिंग आ रही है इन द सेकेंड वीक ऑफ जून. इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस मास्टर क्लास में जो चीज़ें सीखी हैं उसको फर्दर आप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए काइंडली रजिस्टर करें. इसका रजिस्ट्रेशन लिंक भी हमने शेयर कर दिया था, मैं इस प्रेजेंटेशन के बाद दोबारा शेयर कर देता हूँ. उसके बाद हमारा इमेज कंसल्टिंग एंड प्रोफेशनल ग्रूमिंग का प्रोग्राम आ रहा है और इसमें जो जिन लोगों के लिए है वो प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स, कॉर्पोरेट लीडर्स हैं और इसकी ट्रेनर हमारी मिस नूरुल ऐन है जो बहुत सीजन्ड ट्रेनर हैं और HR प्रोफेशनल हैं. वो प्रॉपर तरीके से इसमें जो है उनका भी हमने वेबिनार इसके हवाले से पोस्ट किया था और उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई थी कि किस तरह से हम अपनी ड्रेसिंग इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह का होना चाहिए और अपने आप को हम बेहतर तरीके से किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड. उसके बाद हमारा इकोनॉमिक लीडरशिप ड्यूरिंग इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है जो डॉक्टर आयशा दानिश जो है वो करवा रही हैं. ये भी सेकेंड वीक ऑफ जून से स्टार्ट हो रहा है. इसमें भी ये है कि जो टीम्स के अंदर या लीडरशिप के अंदर अनसर्टेनिटी आती है उसको हम किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं और अपनी टीम को और जिस फील्ड में हम हैं, जिस डिपार्टमेंट में हम हैं उसको हम किस तरह से जिस भी चैलेंजेस या क्राइसिस के में हम होते हैं उसमें से हम किस तरह से उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं बेहतर तरीके से. फिर हमारा एक ये डिप्लोमा प्रोग्राम है सर्टिफाइड लॉजिस्टिक्स प्रोफेशनल का जो इसके ट्रेनर आमिर मलिक साहब हैं जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में भी ट्रेनिंग कराते हैं. तो ये हमारे पास PDC जो है TU वाले अगर खास तौर पे कोई चैट में हैं तो उनके लिए एक तरह से अच्छी खबर भी है कि हमारे पास जो इस्लामाबाद के टॉप सप्लाई चेन के ट्रेनर हैं वो इन हाउस भी हमारे पास अवेलेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह. तो इसके लिए भी अगर कोई इंटरेस्टेड है इसमें और रजिस्टर करना चाहता है तो काइंडली डू रीच आउट टू अस. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. अब हम Q&A सेशन जो है वो उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं. If from you are any questions? फरमान साहब का एक है कि TNA is not the trainer's job if he is in an external source. Rather, it's the company's internal team, HR, line manager, etc. to do the TNA. Correct me if I'm wrong, please. क्वेश्चन ये जानना क्या चाह रहे हैं कि एक्सटर्नल सोर्स या इंटरनल सोर्स में से कौन सा TNA करने में बेहतर रह सकता है या कौन कर सकता है? क्या नहीं चाह रहे कि अगर एक्सटर्नल रिसोर्स है तो TNA ट्रेनर की जॉब नहीं है उस केस में. उसमें HR और लाइन मैनेजर जो हैं उनका फिर होता है कि वो TNA करें. तो वो इसमें चाह रहे हैं कि करेक्ट हिम इफ ही इज रॉन्ग. हाँ नहीं, सही कह रहे हैं कि अगर वो प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं है और जाहिर बात है कि वो उस लेवल की TNA कंडक्ट नहीं कर सकता जो कि एक प्रोफेशनल ट्रेनर कर सकता है क्योंकि इसका भी पूरा एक प्रोसेस है. सो आई थिंक जहाँ तक मैं समझाऊँ तो इफ़ इज़ नॉट प्रोफेशनल ट्रेनर जो कि पाकिस्तान में वैसे ज़्यादातर एक्सीडेंशियल ट्रेनर्स ही होते हैं, इवन जो कोई ट्रेनर भी है भी दो. और ये आई थिंक मोर देन 80% जो मैंने एक डेटा कहीं पे देखा था कि अक्सर ट्रेनर्स भी जो है उन्होंने ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं ली हुई है जिसकी वजह से जो है काफ़ी मैं समझता हूँ ट्रेनिंग्स के अंदर गैप आ जाता है. सो बहरहाल अगर HR TNA कर रहा है, यस वो एक लिमिट तो कर सकता है कि वो KPIs को डिटरमिन कर रहा है, लेकिन शायद अगर उसने ट्रेनिंग की जो है वो बाकायदा पढ़ी हुई है तो वो फिर उसके ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है.
जी किसी और का अगर कोई सवाल हो काइंडली शेयर कर लें हमारे साथ चैट में। स्क्रॉल करके तो देख रहा हूँ कि कुछ मिस ना हो गया हो। 3 न्यू आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मार साहब। अच्छा, एक ट्रेनिंग सेशन जिस तरह होता है उसमें सेटअप, वॉइस क्वालिटी, प्रेजेंटेशन की क्वालिटी, ये सब भी तो डिपेंड करती हैं उसको जाजिब बनाने में। लेट अलोन के ट्रेनर क्या कुछ डिलीवर या कैसे डिलीवर कर रहा है, हाउ इज द एम्बियंस, हाउ इज द एनवायरनमेंट, हाउ आर पीपल सिटिंग देयर, आर दे इन अ स्लीपी मोड और आर दे अटेंटिवली सिटिंग देयर, वो एक क्लासरूम या हॉल या लर्निंग इन्वायरमेंट है, या वो घर पे बैठे हुए हैं और वो जनाब आराम से 3 काम इकट्ठे कर रहे हैं, एक तरफ ट्रेनिंग ओपन की हुई है, तो वो भी तो डिपेंड करती है इन चीज़ों पे। बहुत डिपेंड करती है। एक्सीलेंट पॉइंट मुआज साहब, थैंक यू वेरी मच। जो हम एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं कि और ये हमें ज़्यादातर अब ऑनलाइन सेशंस के अंदर काफ़ी इशू आ रहा होता है, तो ये बहुत एम्बियंस कैसी है, इतना प्रोफेशनली और कितना रिलैक्स रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल देखें, अगर आप यू शेप में बैठे हुए, वी शेप में बैठे हुए और ज़्यादा ऑडियंस है आपकी, और तो ज़्यादातर और 6 घंटे का सेशन है, तो 6 घंटे तक एक बंदे को बिठा के रखना वहाँ पे, फिर बेचारे को पढ़ाना बताना, और अगर आपने प्रॉपर उस तरीके से वहाँ पे नहीं बनाई हुई, क्या कहना चाहिए कि ट्रेनिंग अरेंजमेंट्स, तो ट्रेनिंग में गो रॉन्ग। वेरी वेल पॉइंट, आई फुली एग्री विद यू। जो हमने बात की ना प्रेजेंटेशन में, व्हाट एक्सपीरियंस यू आर गिविंग टू दैम, so that comes under all, comes under that experience. Thank you Maas sahab. तो इसमें एक क्वेश्चन आया है, इनका नाम IFT है कि हु कैन ज्वाइन दिस ट्रेनिंग सेशन। ओके, मास्टर क्लास तो ओपन है हमारी, सीटीपी हमारी स्केड्यूल होती रहती है, अभी जून में भी स्केड्यूल। इफ यू वांट टू ज्वाइन सीटीपी सो देर रजिस्ट्रेशन करवाइए, फिर हमारी टीम आपसे फॉलोअप पे बात कर लेगी। जो भी हमारा नेक्स्ट सेशन आई थिंक जून में आ रहा है, मेरे ख्याल से शायद 23 जून से है, या कब से है सीटीपी का हमारा प्लान जो हो रहा है यहाँ से। आई गेस ये मां साहब का फॉलोअप क्वेश्चन है कि शुड देयर शुड बी सम टाइम लिमिट आल्सो। ऑलवेज दिस इज अ बेसिक थिंग कि भाई सेशन शुरू कितने बजे हो रहा है, और जो सेशन फ्लो जो बनता है, बेसिकली सेशन प्लान जो बनता है, कि इसके अंदर हम सारी चीजें लिखते हैं कि जी 5 मिनट में रेसिटेशन है, 10 मिनट में इंट्रोडक्शन है, हर इवन ये पूरे सेशन का नहीं, हर टॉपिक का इवन प्रॉपर सेशन प्लान बनता है, और उसकी भी टेक्निक्स हैं या उसका भी तरीका है, इवन एक्टिविटी जो आप कंडक्ट करवा रहे हैं उसका भी टाइम फ्रेम विद ऑब्जेक्टिव मेंशन किया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मां साहब, थैंक यू वेरी मच। जी इसमें इब्राहिम खान साहब कह रहे हैं द ट्रेनर इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट अ TNA विद द कोलैबोरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड साइट मैनेजर इंक्लूडिंग सपोर्ट ऑफ द साइट कंस्ट्रक्शन एंड सेफ्टी टीम टू डेवलप एंड इम्प्रूव द सेफ्टी कल्चर अकॉर्डिंग ऑफ द टास्क। लेट मी, द ट्रेनर इज रिस्पांसिबल टू इसको अगर जरा क्लैरिफाई कर सकें, क्योंकि ये with the collaboration of the project and the site management, including a support of the site construction. मैं नहीं समझ सका किसमें आप जानना क्या चाह रहे हैं। अगर आप क्लियर कर देंगे, या बेशक आप बात भी कर सकते हैं, माइक अपना ओपन करवा लीजिए और बात कर लीजिए। इब्राहिम साहब, अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा क्लियर कर लें, अदरवाइज वी विल मूव टू नेक्स्ट। जी प्लीज। सो आई थिंक इफ्तिखार, मेरे ख्याल से और क्वेश्चंस अगर नहीं है सो मे बी वी शुड क्लोज इट डाउन। जी इब्राहिम साहब। हेलो जी इब्राहिम साहब, आवाज आपकी आ रही है? मेरा आवाज आ रही है? जी 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 आ आ रही रही है। है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर जी, मैं हम तो खुद यहाँ पर सऊदी अरब में है ना, जो TNA वगैरह एज ए ट्रेनर में खुद मतलब एज ए स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ, तो जहाँ पर TNA जो बनता जाता है, हम खुद क्रिएट करते हैं ट्रेनर, जो प्रोफेशनल ट्रेनर होते हैं, जो साइट के कोलैबोरेशन पे साइट के जो स्टाफ है उसके साथ जो
साइट पे एक्टिविटी हो रही है अकॉर्डिंग टू द हैजर्ड द रिस्क, फिर अपने साइट में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको कैसे इंप्रूव करने हैं। तो अभी तक तो हमने नहीं देखा कोई एचआर वगैरह आ गया और उसने हमारे लिए क्रिएट किया टीएनए हम खुद मतलब क्रिएट कर रहे हैं, वेरी गुड। उसको अपडेट करते जाते हैं और आगे जाके कि उसको ऑडिट में भी पेश करते हैं, उसके मुताबिक हम ट्रेनिंग देते देते रहते हैं। तो अभी रिसेंटली हमारे ऑडिट हुआ, वो भी मतलब इंग्लैंड से ऑडिटर आया, तो उसके मुताबिक भी हम उसने हमसे पूछा पहले शुरू में ट्रेनिंग प्रोग्राम, फिर हमने टीएनए उसको आगे कर दिया, तो उसके मुताबिक उसने हमारा ट्रेनिंग देखा और उसने मतलब हमें अप्रिशिएट भी कर दिया। तो क्वेश्चन का मेरा मकसद ये है कि टीएनए जो बनाते जाते हैं प्रोफेशनल ट्रेनर, लेकिन कोलैबोरेशन लेते हैं साइट इंजीनियर्स वगैरह से, और यहाँ तक कि वर्कर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं कि किस टाइप के रिस्क और टास्क आप कर रहे हैं, इसमें क्या खतरात है, फिर उसके मुताबिक हम ट्रेनिंग डेवलप करते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। जबरदस्त जबरदस्त सर, जबरदस्त। दैट इज द एक्चुअल प्रैक्टिकल एंड द एक्चुअल टीएनएज। ट्रेनर जो है वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं होता, वो जैसे आप लोग सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, तो ये कि अब सब्जेक्ट एक्सपर्ट साथ ओपिनियन लेना, साथ बैठ के क्वेश्चन फॉर्म डिलीवर करना, टास्क देखना और उसी से ही उनके सीनियर से ही ओपिनियन लेके तभी फाइनल। और जो टीएनए इवन जो अगर ट्रेनर भी बनाता है तो वो फिर आपके सीनियर्स को देता है बाकायदा कि जी ये हमने जो टीएनए किया है उसके हिसाब से हमारी ऑब्जेक्टिव ट्रेनिंग का ये बन रहा है। वंस दैट इज अप्रूव्ड, सो उसके बाद फिर जो है इसका कंटेंट डेवलप किया जाता है या डिजाइन किया जाता है पहले और फिर डेवलप किया जाता है। आइडियली अगर आप लोग टीएनए कर रहे हैं तो यू आर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, नो डाउट कि आप प्रैक्टिकल चीजें बहुत अच्छे तरीके से वहां पे खुद बता सकते होंगे कि दिस इज आवर ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट। आई होप दैट आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। जी, किसी और का अगर कोई सवाल हो या कोई कमेंट हो या अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हो ट्रेनिंग के तो हवाले से। इसमें am I audible to you? जी जी, आवाज आपकी आ रही है। हाँ, मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि जो साहब जिन्होंने सऊदी अरेबिया से फीडबैक दिया, बड़ा अच्छा फीडबैक है ये। और ये शायद मेरे जो टॉपिक बात जहाँ से मैंने स्टार्ट की थी उसी के रेलेवेंस में है, ठीक है। सो उसमें जो मेरा बेसिकली पॉइंट ये था कि ये हम सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। अगर ट्रेनर इंटरनल रिसोर्स है, जैसे इन्होंने कहा कि हम इंटरनली टीम मौजूद है और मैं ट्रेनर भी ट्रेनर हूँ, मतलब मेरी जॉब ही एलएनडी की है, फॉर एग्जांपल एलएनडी अगर डिपार्टमेंट मौजूद है तो दैट्स फाइन। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये था कि वी नीड टू डिफरेंशिएट, बिकॉज जब एक्सटर्नल रिसोर्स आप ट्रेनर हायर करते हैं तो नॉर्मली इतना ना टाइम होता है और ना क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट होती है कि जी मैं पहले आपको अपने लोगों का डेटा दूंगा और फिर उनका स्किल सेट दूंगा और वो सारी चीजें करूंगा और उसके बाद जाके आप असेस करेंगे और उसके बाद आप बनाएं और उसके बाद आप दें। बहुत लिमिटेड टाइम होता है। सो इंटरनली अगर इस तरह की चीज अवेलेबल है, वेल एंड गुड। अदरवाइज बाहर वाले बंदे के लिए अनटिल एंड अनलेस की बहुत ज्यादा उसके ऊपर फोकस करके काम किया जाए, may take weeks, you know, to do that. So मतलब यही पॉइंट था कि यार इंटरनल अगर है ट्रेनर और ट्रेनिंग कैपेसिटी ट्रेनर्स की है या एलएनडी डिपार्टमेंट है तो वेल एंड गुड, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। मेरा पॉइंट ये था कि अगर वो एक्सटर्नल है सो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर हिम टू लाइक डू द टीएनए एंड सॉर्ट ऑफ थिंग्स लाइक दैट। जस्ट टू मेक थैंक यू फरमान साहब फॉर योर क्लैरिफिकेशन। और ऐसा ही है जैसा कि मेरे ख्याल से आइडियली होना चाहिए कि एक्सटर्नल के अंदर इंटरनल की इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो अगर तो आपके पास एक सीजन प्रोफेशनल ट्रेन्ड बंदा बैठा हुआ है हु कैन डू द प्रॉपर टीएनए, सो उससे तो आइडियल कुछ है ही नहीं, देन वी डोंट नीड टू गो आउटसाइड। लेकिन अगर आपने इंटरनल रिसोर्स को भी एक और फर्दर उसको ट्रेनिंग एस्पेक्ट के अंदर उसको कोई छोटा सा सेशन करवा दें, ट्रेनिंग इंप्रूव करवा दें, बिकॉज टीएनए भी जो है वो आपको पता है कि मतलब काफी एक प्रोसेस का नाम है पूरा, जिसको जाहिर बात है इस क्लास में तो मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया। सो अगर आप लोगों ने किया हुआ है और आप लोग कर रहे हैं सो दैट्स फाइन। लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर जाहिर नहीं किया हुआ तो फिर आई थिंक उसके अंदर थोड़ी बहुत गुंजाइश रहती है। और अगर इंटरनल आपका है ट्रेनर तो इससे तो आइडियल कोई बात नहीं है। खालिद साहब कुछ कहना चाह रहे थे, उन्होंने अपना हैंड भी रेज किया हुआ था। जी प्लीज। खालिद साहब आप हैं इधर? इंजीनियर खालिद। अच्छा, मैं इब्राहिम साहब की बात को सेकंड करता था कि साइट्स पे और कंस्ट्रक्शन साइट्स पे ऐसा ही होता है कि
जो ट्रेनर होता है या जो सेफ्टी प्रोफेशनल्स होता है ना, मेजॉरिटी तो वो ये TNA बनाते हैं, और HR वाले बिल्कुल इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। और फिर जो पाकिस्तान में हमारा प्रैक्टिस है, चूँकि एज ए कंसल्टेंट हम काम करते हैं, तो कंपनीज हमें कहते हैं कि हमारा गैप असेसमेंट करें, और इसी गैप असेसमेंट की बुनियाद पे फिर आप TNA बनाए। तो पाकिस्तान में यही हमारा प्रैक्टिस है ऑयल एंड गैस कंपनीज के साथ। जी ठीक, बिल्कुल वो खालिद साहब, ऐसे ये सब्जेक्टिव है, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। मैं फिर कहूँगा कि मैं इस बात को रिफ्रेश करूँगा कि इंटरनल रिसोर्स अगर आपका अच्छा है, ट्रेनिंग का भी है, उसका एक्सपीरियंस है, नो हाउ है, तो इट कैन बी गुड। अदरवाइज एक्सटर्नल फिर मजबूरन इसीलिए हायर करने पड़ते हैं। सर अच्छा सर, अगर आप मुझे इजाजत दें तो इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूँ, शायद वो काम की हो किसी के लिए। ये मैं खुद चूंकि HSC बैकग्राउंड से हूँ, तो हम HSC वालों का नॉर्मली एक प्रॉब्लम है कि हम जब भी ट्रेनिंग सुनते हैं या डिस्कस करते हैं, तो हमारे जहन में सिर्फ और सिर्फ वही ट्रेनिंग चल रही होती है जो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड हो। अभी जैसे कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है या फॉर एग्जांपल ऑयल एंड गैस की बात हो रही है, तो उसमें भी सिर्फ और सिर्फ वो ट्रेनिंग्स डिस्कस हो रही हैं, अंडर डिस्कशन है, जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड है। तो ट्रेनिंग तो अपने अंदर एक पूरा जहान है जिसमें हेल्थ एंड सेफ्टी एक टॉपिक है जिसके ऊपर लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत होती है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें फिर HR का इनपुट आएगा। तो वो साइट बेस्ड और उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो ओवरऑल एक ट्रेनिंग जो पैराडाइम है उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही सर, एग्रीड एग्रीड, आई थिंक बिल्कुल एग्रीड। थैंक यू वेरी मच। जी किसी और का कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट हो वो शेयर करना चाहे? आज के सेशन के हवाले से कोई बात करना चाह रहा हो? जो हमने बोरिंग की बात की, एंगेजमेंट की बात की, 3 किस्म के हमने जो ट्रायड की बात की कि भाई कॉग्निटिव लोड है, साइकोलॉजिकल लेंस है, इसके ऊपर कोई चीज अगर आप लोग बात करना चाहते हो, वी हैव अराउंड 5 मिनट्स टू डिस्कस। So I think it's okay. So Iftikhar, maybe we should close it down then. जी, मैं बस ये एक दफ़ा फिर बिफोर द सेशन एंड्स मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक और इसका जो फ्लायर है वो एक बार फिर शेयर कर दिया, तो जो इंटरेस्टेड हो वो उसको शेयर कर सकता है, इस पर रजिस्टर कर सकता है, और जो अगर किसी और के लिए बेनिफिशियल है तो वो भी कर सकता है। इसके साथ एक और अनाउंसमेंट ये है कि TEPDC जो है वो इस्लामाबाद में एक HR मीटअप ऑर्गेनाइज करवा रहा है। तो अगर आप ये इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं नेटवर्किंग के लिए, अपना नेटवर्क ग्रो करने के लिए, और अपॉर्चुनिटीज अगर डिस्कस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं क्या है, तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। डेट्स इसकी जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक जो है वो अनाउंस हो जाएंगी कब का सेशन है। तो अगर आप इसमें भी इंटरेस्टेड हैं, आप QR कोड को स्कैन करके तो हमारी कंपनी में इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमारे पास अब तक अराउंड 45 to 50 HR प्रोफेशनल्स जो हैं वो हैं जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन है ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे चल रहा है। हाँ जी, मैं बिल्कुल व्हाट्सएप का लिंक भी शेयर कर देता हूँ ग्रुप का। So have a good weekend all, or Eid Mubarak in advance, and hope to see you soon in our CTP program, inshallah. Take care everyone, and Allah Hafiz.